Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stocks log modest gains amid positive global cues. Sensex closes at 49,746. Nifty settles at 14,874. Rupee weakens to 74 rupees 61 paisa against the US dollar. And gold futures rise to trade beyond 46,500 rupees per 10 gram. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सामान्य बढ़त। सेंसेक्स 49,746 और निफ्टी 14,874 पर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज करते हुए 74 रुपये 61 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ और सोने का वायदा मूल्य बढ़कर 46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंचा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बाजार विशेषज्ञ और आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल का। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू। और अब शेयर बाजार में देखते हैं आज कैसा प्रदर्शन रहा। वैश्विक शेयर बाजारों में वृद्धि के अनुरूप घरेलू शेयर बाजारों में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.17% की तेजी से 84 अंक बढ़कर 49,746 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.37% की वृद्धि से 55 अंक बढ़कर 14,874 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां बढ़त और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.6% की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.73% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex today rose modestly in sync with gains in the global equity markets. The Sensex at Bombay Stock Exchange gained 84 points or 0.17% to trade at 49,746. The Nifty at the National Stock Exchange also climbed 55 points or 0.37% to 14,874. The mid cap and the small cap at BSE performed better than the Sensex. The mid cap rose 0.6% and the BSE small cap index rose 0.73%. In the Sensex pack, shares of 15 companies gained while 15 logged losses. Titan was a top gainer as it surged 4%. Ultratech climbed 3.3%. Tech Mahindra gained 2.5% while Nestle India and TCS both added 1.4%. On the other hand, IndusInd Bank, ONGC, Sun Pharma and Bajaj Auto declined more than 1%, while HDFC Bank and Axis Bank fell around 1%. In sectoral indices, 14 out of 19 sectors climbed. Metal sector stocks were the top gainer, adding more than 4.4%, followed by basic materials, which gained 3%. Consumer durables climbed 2.6% and industrials closed 1% up. On the other side, power sector stocks lost more than 1%, while BankX and utilities fell 0.6%. Finance and energy sectors stocks both slipped 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,810 companies gained, while 1,107 fell. Shares of 168 companies remained unchanged. Rajiv, your first comments, the market seemed to be carrying forward, after the RBI's announcements yesterday, the markets rose and today also we're seeing the same trend. Yeah, after yesterday's RBI policy and the fact that we are entering into earnings season where the numbers are expected to be good, and the third factor, which is a global liquidity, after a very short period where we saw the movement out of emerging markets, the flows to emerging markets have resumed well. Given all this context, I think the market, after a point of correction, has started again to gain some traction in the upward direction. Probably it will continue before we start the earnings season, and then depending on earnings season, we are going to see how it goes forward.
राजीव, कल हालांकि स्टेटस को ही रहा, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर हो, जो पॉलिसी रेट्स हैं, या एकोमोडेटिव स्टांस को लेकर हो, वो भी उन्होंने ज्यों का त्यों बनाए रखा, और जीडीपी के एस्टिमेट्स भी ज्यों के त्यों बनाए रखे। लेकिन एक जो डिसीजन उन्होंने लिया है, बहुत टाइम से बॉन्ड यील्ड्स की जो हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स को स्टेबलाइज करने के लिए सरकार की जो बोरोइंग 12 लाख करोड़ की होनी है, उसको सपोर्ट देने के लिए जो नया GSAP 1.0 लाया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स फर्स्ट क्वार्टर में खरीदे जाएंगे। ये आपको कितना बड़ा स्टेप लगता है बॉन्ड यील्ड कर्व के स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसकी तरफ एक कहें कि एक स्टेबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक भरोसा दिलाने के लिए कि वो उसमें एक स्टेबल ग्रेजुअल फ्लो रहेगा? देखिए, ओवरऑल बोरिंग क्या रहती है या कैसे रहता है वो तो बाद में जाके मालूम चलेगा, बट एक जो चेंज इस पॉलिसी से आया है कि क्लैरिटी है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना रहेगा। सो एनीथिंग विच इज जो भी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करती है, वो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी प्रीमियम हटा देती है मार्केट से, विच दिस अनाउंसमेंट इज डन। सो इट्स लाइक अ टाइम टेबल आपको पूरा बता दिया कि इस दिन ये एग्जाम है, इस दिन ये एग्जाम है, एग्जैक्टली हाउ द बोरोइंग इज गोइंग टू बी डन. So that element of uncertainty is over. So that is why if you see the bonds cool down, yields cool down a bit, and now people, all the corporates and everybody can plan that how the movements are going to happen. So it's a positive, more transparency, bringing more transparency toward that. So जो element of confusion होता था या speculation होता था कि नहीं अब ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वॉलेटिलिटी आती थी, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। खत्म तो कभी भी नहीं होती कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, but I think it brings in transparency, which is a positive thing. Rajiv, we're talking about the markets now. Like we just saw that yesterday and today the markets have gained, but today the gain has been, like 84 points. Given the volatility in the past, do you see markets now stabilizing a bit after yesterday's announcements, or are we going to, again see volatility in the coming days? No, see, volatility is going to be is a whole, part of the market. When we say stability, it's not that it's going to continue to rise in one way without any kind of a correction. If you look at in last 1 month, last 1.5 months, we have seen volatile markets. The volatility will remain there, and in every earnings season, it tends to increase a bit. The question is that the bias of volatility, is the bias of the volatility towards the bullish side or bearish side? As of now, it appears that it is going to be more towards the bullish side, because the probability of any negative surprise coming on earnings is very less. While the COVID cases are rising and there are lockdowns happening across the country in various parts and bits and pieces, night curfew and all, but the fact, because the vaccination is on, there is a hope in the market that probably this phase is going to settle down soon, sooner than later, and we are not going to see any national lockdown or any sort of thing which we saw last time. So that is what it's making the market stay bullish, and of course the global liquidity tends to be is continuing to be very flush. We have seen some of the sectors which have a decent weightage in our market, like metal stocks and all those commodities are doing well. So part of that index is doing well. So I think the volatility will stay, but the bias remains towards being bullish. Probably dips would be bought rather than being anything else. So good, actually, news for the investors if you think the trend is going to be bullish towards the whole market. It's going to be, but it also, as far as the investor is concerned, we'll have to make a distinction between whether a person is an investor or a trader. That is an area where most of the people kind of, mix their feelings and become, instead of becoming, they go into market as an investor and then they become traders. Mm-hmm. It also depends on what kind of portfolio one is holding. So for the investors who are holding a, portfolio of companies right now where there is higher exposure of metals, commodity related stocks, specialty chemicals, all those, probably they will do better for some more time, because it's the financial sector probably which might see some pressure in this quarter. So it depends on what you're holding, but yes, equity as an asset class, the probability is high that it would be better. Let's say 6 months down the line, we would be placed at a much better place.
राजीव, अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो कल काफी अनाउंसमेंट्स हुई हैं फाइनेंशियल सेक्टर की ओपनिंग अप को लेकर। एनबीएफसी के टाई अप विद बैंक्स, उनको परमिशन दी गई है ताकि लास्ट माइल जो क्रेडिट फ्लो है वो इजीली हो पाए। 50,000 करोड़ सिडबी, नबार्ड और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को दिए गए हैं, जिससे रूरल हाउसिंग, स्मॉल बिजनेसेस को फायदा होगा। इस तरह की काफी अनाउंसमेंट्स हैं। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें फिनटेक कंपनीज को आरटीजीएस और एनईएफटी की परमिशन दी जाएगी। तो ये जो ओपनिंग अप है फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसमें एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बैंक्स के साथ बाकी जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनको दिया जा रहा है, इससे आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके प्रति कुछ कहें कि बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट हो सकती है, या ये नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है। देखिए, दो चीजें हैं फाइनेंशियल में। जो आपने अभी जो बातें कही वो एक ब्रॉडर मैक्रो लेवल पॉलिसी डिसीजन है, और वो एक अलग चीज में आते हैं। वो ऑब्वियसली दीज थिंग्स विल हेल्प एनबीएफसी मोर। जहां तक बैंकों की बात है, वहां पे क्रेडिट ऑफ टेक बहुत थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ था, वो एक इशू रहेगा। या दूसरा, अगर ये कोविड केसेस बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो रिटेल सेक्टर को लेंडिंग हुई है, जो कि अभी दोबारा से वॉज शोइंग सम साइंस ऑफ रिकवरी, एंड जो एनपीएस थे वो रिकवर होने की, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। एंड वो जो है शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट को वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा रादर देन व्हाट द अनाउंसमेंट्स हैव बीन मेड। सेकेंडली, आपका जो पॉइंट है एनबीएफसी का, एनबीएफसी में एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज थी, जो कि करीब 6 महीने पहले आरबीआई ने क्लियर कर दिया था दैट दे विल मूव टुवर्ड्स दी पाथ जहां पे ये रेगुलेटरी आर्बिट्राज, जिसकी वजह से कई लार्ज, अगर आप एनबीएफसी देखें, ग्रुप्स ने एनबीएफसी रखे हैं रादर देन दे गेटिंग इनटू अ बैंक की बैंक्स वगैरह या उस तरीके का कुछ बनाते। एक तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉ दे कुड नॉट गेट इनटू बैंकिंग, बट एनबीएफसी की वो जो आर्बिट्राज है वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जाए कि वो टू बिग टू फेल वाला किस्सा हो जाए इंडिया के अंदर। So these things will become जो measures लिए गए हैं, these will show their impact over a longer period of time. But in short term, it's the credit offtake and the recovery in NPA जो कि ज्यादा important है from the stock price perspective. वो थोड़ा सा लेकिन अभी इस टाइम पे लगता है कि not in the favor of financial, including banks. तो आपको लगता है कि ये जो मोरेटोरियम खत्म किया है, सस्पेंशन ऑफ आईबीसी प्रोसीडिंग्स को भी खत्म किया है, तो एनपीएस बढ़ने की संभावना है? एक चुनौतीपूर्ण I don't think so. That is NPS जो मोस्ट लाइकली अगर हिट होंगे तो वो थोड़ा सा जो रिटेल जो सेगमेंट है उसकी तरफ हिट होंगे। जहां तक आईबीसी का खत्म होने की बात है, आई थिंक दैट इज अ वेलकम थिंग। ऑलमोस्ट फॉर 1 year it was suspended. It has to resume now. वो that's a rather positive rather than negative. But in short term it is to me issue appears is कि रिटेल सेगमेंट में थोड़े से एनपीए या रिकवरी ऑफ एनपीएस थोड़ी सी स्टॉल हो सकती है रादर देन actual number of NPAs, increasing anywhere sharply. Rajiv, coming back to the markets, now today we saw that the mid-cap and small-cap index have performed better, and over the period of time also we've been seeing, in fact, since in the past 2 weeks, since March 25th, the small-cap index has outperformed the main market by gaining 7.3%. Mid-cap index was up 6.1%. So, what do you attribute the rally in the mid-cap and small-cap indices? And number two, do you see these segments outperforming the main indices in the near future? See, coming to first part of your question, this recovery in mid and small cap, since we started probably in the October and November period last year, because there were a lot of money which had started flowing into India during that time from global investors, and the valuation gap between the large and the small cap had become extremely high. I mean, like for small cap, there was a bearish phase which had been going on since the start of financial crisis in 2018. Since then, mid and small caps were underperforming. Now, to that extent, there is just some kind of a catch-up trade which happened in small and mid cap. Coming to your question of whether they will continue to outperform, see, at an index level, for some time they might. But if there is any issue with these, with the economy in terms of a slowdown globally, the large cap companies, they have a balance sheet power of sustaining any slowdown.
I don't think, one has to be very cautious while investing in small and mid caps, because at index level, you actually tend to ignore a lot of, stuff which is happening underneath. Let's say there's 100 index stock. If one looks at that performance, it might appear to be good. But underneath, there are another 1,000 stocks which might not do well. In this case, at an index level for some time, yes, of course, we might see that outperformance continue. But here the investors need to be very cautious. It's a time to be cautious. It's a time probably to rejig the portfolio. It's a time to let go of these stocks which you bought 3 years back and have not performed, or there are management issues or the balance sheet issues are there. So while this outperformance continues, it would be a good time to rejiggle and reshuffle your small and mid cap portfolio at this point of time. राजीव, जो पिछला वर्ष है इतना संकट वाला वर्ष था, पैंडेमिक ने काफी अफेक्ट किया बिजनेसेस को और जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने देखा कि बाजार की जो परफॉर्मेंस है हमारे सेंसेक्स निफ्टी की काफी अच्छी रही, मिड कैप स्मॉल कैप की भी। इस वित्त वर्ष से आपको क्या आशाएं हैं ऐसे माहौल में जब इकोनॉमिक रिकवरी होने के काफी अच्छे अनुमान आ रहे हैं? आपको लगता है कि अभी भी क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लो करता रहेगा भारतीय बाजार में? देखिए सोनू जी, दो चीजें हैं। एक तो जब हम पिछले साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सेइंग कि अच्छा साल रहा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो पिछले साल मार्च में मंदी आई उसके बाद से हम कहते हैं कि देखिए 7500 से 15,000 दोबारा निफ्टी हो गया। अब लेकिन वो परफॉर्मेंस को कंपेयर करने का सही तरीका नहीं है। आप प्री पेंडेमिक फेज और जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके जो डिफरेंस को कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर इज अगेन एन एवरेज ईयर, स्लाइटली हायर देन रिटर्न्स विच वर देयर इन द जो पिछले सालों में थी। तो बहुत ज्यादा कुछ अगर आप लो को हटा दें, जो एबरेशन जो मार्च के लास्ट हफ्ते में ऐसे आई थी उसको अगर आप रिमूव कर दें तो बहुत ज्यादा बड़ी रिटर्न या किसी ने इंडेक्स ने दियो ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस ईयर प्रॉब्ली अर्निंग्स कैचअप होंगी। वैल्यूएशन वाइज जो है हम वो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत चीप है, थोड़ा सा वैल्यूएशन भी कैचअप होना होगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, डिपेंड्स कि अर्निंग्स कैसे आती है। जहां तक एफपीआई की बात है, आई थिंक दैट इज वन एरिया गिवन द फैक्ट दैट ग्लोबल लिक्विडिटी अभी भी काफी ज्यादा है और अमंग द इमर्जिंग मार्केट इंडिया इज अ फार बेटर मार्केट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। द पेस ऑफ रिकवरी हैज बीन, इकोनॉमिक रिकवरी हैज बीन वेरी शार्प। तो वो एक फैक्टर है जो इंडिया की फेवर में वर्क करता है। और जो कुछ रिफॉर्म 2019 में जो टैक्स रिफॉर्म थे, जो पीएलआई स्कीम्स आ रही है, इसके चलते जो रीजिंग हो रही है सम कंपनीज के जो केपेक्स प्लान अभी आने शुरू होंगे, सो उसको उनको सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्ली दिस फाइनेंशियल शुड ऑल्सो बी अ डिसेंट फाइनेंशियल ईयर, वन रेड फ्लैग ओनली बीइंग अ स्प्रेड ऑफ दिस कोविड केसेस इन शॉर्ट टर्म। आपने पीएलआई स्कीम्स की बात की। पीएलआई स्कीम्स आई हैं जो पिछले वर्ष शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत के तहत बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमी को, एंड ये जो एक बूस्ट दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी है और अवेयरनेस भी है, उस सबको देखते हुए आपको लगता है कि ये जो कोविड की सर्ज है वो इकोनॉमिकली उतनी डैमेजिंग नहीं होगी जितनी पिछली फर्स्ट सर्ज थी? देखिए, इस बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बिकॉज अब तो लोगों को पिछले बार तो इट वॉज एन अननोन फिनोमेना फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। राइट नाउ इट इज अ नोन फिनोमेना एंड ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन इज ऑन, सो वी आर द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। टिल लास्ट टाइम तो कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा था। आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा जो आपने कहा कि कम होगा हिट, आई थिंक दैट वो वैसा हो सकता है। बट अगेन एक इसमें एक और चीज जो इंडिया फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हमको देखनी पड़ेगी कि इसके बाद ऑयल प्राइसेस कितने बढ़ते हैं। अभी तक फिलहाल में कुछ काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव मनी जो था वो ऑयल में चला गया था। पहले गोल्ड में गया, फिर देन इट वेंट इनटू इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लासेस, फिर बाकी कमोडिटी में गया, फिर उसके साथ साथ ऑयल में भी चला गया। सो अगर ऑयल में कोई बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं आता सस्टेन बेसिस पे, देन आई थिंक the probability is that this year is going, this year probably FPIs would be putting in again, पैसा इंडिया में आता रहेगा। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पर चलते हैं करेंसी बाजार की ओर।
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर की तुलना में 5 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक भी 0.22% कम होकर 92.25 पर आ गया। राजीव, हम दोपहर को मनी मैटर्स में भी बात कर रहे थे कि रुपए में हमने कल 1 रुपए से अधिक की गिरावट देखी, ऐसे दिन पर जब आरबीआई की पॉलिसी को बाजार ने काफी वेलकम किया और हमने भारतीय बाजार में उछाल देखा था। कैसे देखते हैं आप रुपए की स्थिति को? क्या ये चिंताजनक है? नहीं, कतई मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक नहीं है। हमको रुपए की जो मूवमेंट है वो उस बाकी जो दुनिया की करेंसीज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। कुछ जो वीकनेस आई थी क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ी तो जो थोड़ा डेट के लिए पैसा आया हुआ था वो वापस चला गया, तो शॉर्ट टर्म में कभी कभार ऐसी मूवमेंट आ जाती है। अगर ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है, अगर यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स थोड़े टाइटन अप होंगे। अगर वैसा होता है तो देर सवेर हमारे यहाँ भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आएगा। बट जहां तक रुपये की बात है, हमको देखना पड़ेगा कि अगर बाकी कंट्रीज का जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले अगर वीक हो रही है और हम स्ट्रांग है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे उसका असर पड़ता है। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट थोड़ा सा वीकनेस आए सो दैट वी रिमेन कॉम्पिटिटिव। अदरवाइज बाकी इशू होंगे। बट जब तक उस रुपये के में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल तरीके से नहीं घटता है तब तक कोई इश्यूज नहीं होता, क्योंकि हेजिंग प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट की कॉस्ट ऑफ हेजिंग देयर एक्सपोजर नहीं बढ़ती है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मेजर कॉज और बिग कॉज ऑफ वरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। But Rajiv, currency is concerned. But do you see the rupee declining even further? Because some analysts believe that it might just go as low as 75 to the dollar. Well, even if it goes to 75, I don't think so. In my calculation, that's a big deal. I mean, I see it still stays above the level of what it had touched earlier. But it would affect our oil imports, right? In short term, yes. But then, if that is the case, then we should have a look at our IT exports also. See, our IT exports would do better if there is the IT companies would get more money for every dollar they earn. So that is partially compensated. But yes, you are right. I mean, oil import bill goes up and that adds to inflation. But at this point of time, we have to see strong, absolutely strong currency on a standalone level is also not something which we require. We require an orderly decline without the element of volatility, which is happening for a very long period of time. Right. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज कारोबार सीमित दायरे में हुआ और कारोबार की समाप्ति पर रुख मिला जुला था। हांगकांग का हैंगसेंग 2% के उछाल में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई। उधर जापान के निक्केई सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक प्रत्येक में 0.1% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति लचीली रखने की प्रतिबद्धता जताने के बाद वित्तीय सहायता के बल पर होने वाले वैश्विक आर्थिक सुधार के प्रति आशावाद के बीच यूरोपीय बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जा पहुंचे। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 3% के उछाल पर था। फ्रांस के कैक में 0.8% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.4% की बढ़त पर था। And talking about the US markets, the S&P 500 and the Dow yesterday closed with marginal gains with support of financial stocks. The US stocks had traded in a narrow range ahead of minutes from the Federal Reserve's last meeting that could offer clues on the central bank's views on inflation and an economic recovery. The Dow Jones Industrial Average gained but ended almost flat. The S&P 500 added 0.2% while the Nasdaq Composite Index fell marginally by 0.1%. क्या कहेंगे राजीव? एक catch-22 सिचुएशन है। एक तरफ बाजार इकोनॉमिक रिकवरी भी चाहता है लेकिन दूसरी तरफ ये चाहता है कि जो रुख है सेंट्रल बैंक का वो भी लचीला बना रहे। देखिए, जहां तक बाजार को ये आदत है वो सेंट्रल बैंक ने खुद ही डाली है। इन द सेंस दैट 2008 के क्राइसिस को बाहर निकलने के लिए मनी प्रिंटिंग की जो इंस्ट्रूमेंट यूज करे गए, आई थिंक नाउ मार्केट हैज गॉट यूज्ड टू इट कि जरा सा कोई प्रॉब्लम आएगी और काफी टाइम तक मनी प्रिंटिंग चलती रहेगी। बट आई थिंक अभी तो लगता है कि जो नंबर्स हैं, जब तक ये कोविड यूएस में अभी एक फेज आया जहां पे एक रीओपनिंग ट्रेड हो रहा है,
बट उसके बाद कैसे ये पैन आउट होता है आई थिंक वो देखना पड़ेगा. बट दिस इज अनदर रिस्क विच एवरी इमर्जिंग मार्केट जो है जो फेस करती है कि यूएस जो फेड है वो किसी दिन रात को थोड़ा सा हिंट दे दें कि अब अपनी मनी प्रिंटिंग मशीन को थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं. वो एक फेज आएगा जिस टाइम ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट जो है वो करेक्ट करेंगे. अब वो शायद अक्टूबर में आए या वो शायद उसके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आए, वो देखने की बात है. लेकिन दैट इज वन रेड फ्लैग. और इसी सिंक पे अगर हम भारतीय आरबीआई की बात करें ब्रीफली, आपको लगता है कि उनकी जो एकोमोडेटिव पॉलिसी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी जैसा उन्होंने इंडिकेट किया है? देखिए वो लंबे समय तक, हमारे यहाँ लंबा समय जो है वो 2 महीने है एक्चुअली ऑनेस्टली. आई मीन एंड सेकेंडली yes. And secondly, I think if there is a outflow from emerging market, inflation shows sign of pushing up. I think even RBI would be forced to at least change this and from being dovish note to more neutral, and then over a period of couple of months, they will start getting indication के थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि मार्केट्स के साथ साथ जो स्टांस है सेंट्रल बैंक का उसमें भी यूएस ही लीड करता है समवेयर. नहीं, मार्केट यूएस इज द मदर मार्केट फॉर एवरीथिंग, तो वो लीड तो हर चीज में लिटरली करते हैं. द ओनली क्वेश्चन इज कि हम लोगों को कितना वो किस लैग से हमको फॉलो करना पड़ता है. एंड आई थिंक जो इंडिया की स्थिति है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ रिकवरी वी हैव सीन पिछले 6 महीनों में, वो एक फैक्टर है जो इंडिकेट करता है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ दोबारा फेज आया, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो यूएस फेड की वजह से हो, बट इट विल लास्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसमें कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आएगी. बट सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग आरबीआई हैव द गॉड गिवन राइट टू चेंज देयर स्टैंड व्हेनेवर दे वांट. सो नो पॉइंट इन गेसिंग देम इन एन इवॉल्विंग सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जी, आइए अब रुक करते हैं कमोडिटीज का. पहले कीमती धातु मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 290 रुपए बढ़कर 46,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मई में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य भी 500 रुपए बढ़कर 67,130 रुपए प्रति किलो हो गया. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,750 10 सेंट प्रति आउंस पर था और चांदी $25 50 सेंट प्रति आउंस पर थी. Moving on to oil, crude prices today fell after official data showed a big increase in U.S. gasoline stocks. The stockpile of gasoline inventories in the U.S. sparked concerns about demand weakening in the world's biggest oil consumer market as crude supplies around the world rise. In intraday trade, the Brent was trading around $63 per barrel, while WTI crude prices were around $59.50 per barrel. Rajiv, falling crude prices in a way may be good, it is good news for the common man, but it also indicates the economic recovery being affected due to rising infections. So it's kind of a tug of war between gloom and joy for the markets. Well, there's a correlation between them. I mean, you are absolutely right, but I don't think there is a one-to-one correlation that if there is a movement of, let's say, even for not one-to, in the sense that if today it has happened, but broadly I think oil prices are pretty much indicating a recovery, because if you look at the way they have moved from their lows, it is clearly indicative that it is showing a demand which is much higher than actual demand, which is currently there. So there is an element of speculative element which is keeping the price high. So my hope is that when the demand recovers, the spike in prices will not be as high as it was in last few days. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा. राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log modest gains amid positive global cues. Sensex closes at 49,746. Nifty settles at 14,874. Rupee weakens to 74 rupees and 61 paisa against the US dollar, and gold futures rise to trade beyond 46,500 rupees per 10 grams. That's it in this edition of Market Mantra. This is Sonu Sood and Anubha Rohgi saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.